Namaste everyone and welcome. Welcome to this workshop on money matters. Okay, before we begin, let us invoke for divine blessings. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, personally to my teacher, Grandmaster Jyoksai, Mahaguruji Meli, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and to my higher soul. We humbly invoke your divine guidance, divine help, divine presence. And during this session, guiding us, supporting us, helping us to fulfill our wishes and desires, have a deep understanding about our problems, and finding out the solutions with your divine help, divine guidance, divine protection. Bless us that we may fulfill all our desires and fulfill the purpose of being here on this earth. The main purpose of being on earth is to be happy. So let us, bless us that we may be happy. Okay, after the end of this session, with thanks and in full faith. Let us begin. So welcome everybody. Today's chapter, Money Magic, and we are going to have a workshop, as I said. Okay, we are talking about, just a second. Okay, so let us talk about money. So what is money? What do you think is money? So moment we say money, so I hope you're sitting with your book and pen, everybody. So moment I say what is money, I want each one of you to write down. Very important friends. देखिए, again and again I say कि information तो बहुत है. It is a world of information. Correct? But information is not helping. It is the practice that we are doing practical that is going to help us. Action helps, not only information. Okay? Information or knowledge, when put into action, becomes wisdom. I repeat, information or knowledge, when put into action, can change your life. तो चलिए, जैसे ही हम कहते हैं कि मनी, पैसा, what comes to your mind? You write down. क्या दिमाग में आता है? Money helps us to get things we want. Great, got it through. Okay. That is it. और क्या? When you say money, immediately it's your own wishes. See, it is not about right, wrong, morally correct. We are here to find, to come out of something. ठीक है? Come out of something to get something new, to create magic. Yes. Let me see if you can unmute yourself, all of you. Ma'am, independence. Yes, independence. Okay. To live our Money. life gracefully. Perfect. Living our life gracefully, independence. It can help us to get all our things. What else? Future security. Security. Money is equal to security. तो भारती आप लिखे, जो भी लोग यहाँ वर्कशॉप में हैं, आप लोग लिखें. लिखिए, मनी इज इक्वल टू सिक्योरिटी, मनी इज इक्वल टू फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सॉरी नॉट फ्रीडम, शी इज एन इंडिपेंडेंस. मनी गेट्स यू टू लिव योर लाइफ ग्रेसफुली. आपके लिए पैसा क्या है? क्या है? मतलब बहुत जरूरी है. ठीक है. एक्सेस टू गुड फूड, हेल्थ, सर्विसेज, लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स, यस, दैट इज मनी. व्हाट एल्स? लिखते जाइए कि मतलब पता चले कि मेरे लिए पैसा क्या है. तो मेरे लिए पैसा, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, या इट वाज. अब क्या है? अब पैसा बोलो तो क्या आता है? समथिंग वेरी प्रेशियस, फील छूटना नहीं चाहिए. क्या क्या थॉट्स आते हैं? पैसा क्या है? ठीक है, अब आपका रिलेशन क्या है पैसे के साथ? व्हाट इज योर रिलेशन विथ मनी? और इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मनी?
सी इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। जब तक आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, करेक्ट, क्लियर नहीं होगा। हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो आपके बिलीव्स क्या हैं मनी के बारे में, या यूजुअली अब ये बिलीव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिलीव्स वो चीजें हैं, जैसे कि हम भाषा सीखते हैं बचपन में, मदर टंग। उसके लिए आपको ग्रामर नहीं सीखना पड़ता, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी पड़ती, वो अपने आप आ जाती है भाषा, है ना। कैसे आती है? सुन सुन कर, देख कर अपने आसपास। उसी तरह से पैसे के लिए भी कुछ बिलीव्स हैं जो हमारे अंदर बन जाती हैं। हमारे सोसाइटी में जब हम बॉर्न हुए थे, या हमारा जो कल्चर था, जैसे हम ट्रांजिशन देख रहे हैं, करेक्ट, कि इमीडिएटली कुछ दशकों में बहुत सारी दुनिया बदल गई है, बहुत कुछ बदल गया दुनिया में, है ना। तो वैसे जब हम दुनिया में थे, हमारे जब फॉर्मेटिव इयर्स थे, तब हमारे क्या बिलीफ थे पैसे के बारे में, या अब वो दैट हेल्प्ड अस टू क्रिएट बिलीव्स अबाउट अवर, अवर इमोशंस अबाउट मनी। तो जहां तक इफ आई वुड लाइक टू शेयर कि हम जो मूवीज देखते थे, ठीक है, तो उसमें यूजुअली दिखाते थे नीरू पौराय और अमिताभ बच्चन, और जहां हम बोलते थे कि मुझे ये कमाई नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ ऐसे दिखाया जाता था कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। अग्री? नॉट अग्री? सो यूजुअली जो विलन है वो पैसे वाला होता था, और हीरो है जो गरीब होता था। यस। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमें लगता है कि गरीबी एक वर्च्यू है। आई डोंट नो, अभी नहीं, somewhere, yes. दूसरी बिलीफ है कि you have to work hard to earn money. Good education enables high earning. Money defines your, one second, let me see what who has written. Money defines your value, in society. Okay. Without money, no respect, no acceptance by society. Okay. ये भी एक है कि अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूंगा, जैसे सुने हीरो बोलते बड़ा आदमी। और बड़ा आदमी कैसे बन जाता है ना, कि ज्यादा पढ़ाई करके, या कोई साइंटिस्ट बन के, ना ना, टीचर बन के ना। बड़ा आदमी बनूंगा मतलब बहुत पैसा कमाऊंगा, आई मीन ये। सो बड़ा आदमी, रिस्पेक्ट इज इक्वल टू मनी, ये हमारे माइंड में बिलीफ है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट और रॉन्ग, ट्रू और नॉट, इट्स वर्किंग नॉट वर्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम सिर्फ यहाँ पर हमारे बिलीव्स जान रहे हैं कि हमारी बिलीफ क्या है पैसे के बारे में। तो जो हम पिक्चर, हम हमारे फैमिली में जब सुनते हैं कि जब हमारे पिताजी या मम्मी कहते थे कि अरे खून पैसे पसीने की कमाई है, अरे हमारे तो मेहनत के पैसे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, करेक्ट, मेहनत के पैसे डूबते नहीं है। या हमने ऐसे कभी सुना हो कि कोई रिश्तेदार अचानक से पैसे वाला हो गया हो, ठीक है, और फिर सबको क्वेश्चन आने लगता है, कुछ तो गड़बड़ की होगी, ऐसे थोड़ी पैसे आ जाते हैं अचानक से, राइट। कितने लोगों को ये आता है कि अचानक से आपको पता चल जाए कि किसी ने BMW खरीद ली, साधारण सा, नौकरी पेशा आदमी है या कुछ है, तो इमीडिएटली थॉट आ जाता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ की होगी यार, ऐसे कैसे, हाँ, 3 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया, कैसे, कुछ तो किया हो, फट से लोगों मिले ये। यस। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वी आर नॉट, दीज आर अवर बिलीव्स अबाउट मनी। अब हम समझें कि मनी है क्या। और ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन है, हमारे बिलीव्स है, थॉट्स है, इमोशन है, चलो ये तो थॉट्स हुए, बिलीव्स हुए। अब इमोशन की बात करते हैं। क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स आते हैं हमें जब हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पैसा आता है या आने वाला दिखता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। यस, नो, मे बी। अच्छा, कोई दे रहा है, कुछ रिसीव हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, बड़े मजे आते हैं। अब यही, जब हमें पैसे देने पड़ते हैं किसी को भी, चाहे वो पेमेंट्स हो बिल के, या घर में मेहमान आ गए, कोई बच्चा आ गया तो भाई गिफ्ट देनी है, या कहीं शादी पे जाना है तो यार कुछ तो देना पड़ेगा, पड़ेगा। करेक्ट, समाज में लोग क्या बोलेंगे, हमें कुछ तो देना पड़ेगा। Correct? तो जब हम देते हैं तो क्या फीलिंग, जब हम लेते हैं तो क्या फीलिंग, राइट। व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मनी, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मनी। कुछ भी हो सकते, जो आपने बचपन में सुना हो, नेबरहुड में सुना हो, कि आपकी बुआ से आपने सुना हो कि भाई बहुत पढ़ाई करोगे तो पैसे मिलेंगे,
करेक्ट। या आपने सुना पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक है। मेरे पति जब हम किसी की बात करते, अरे वो देखो इतना बड़ा उसका प्रोग्रेस हो गया, पता है उसने ये ले लिया, और उसने अपना बंगलो भी लिया, उसने अपने एक फैमिली क्या कहते वैकेशन होम बनाया है, उसने खरीदा, एक बंगलो खरीदा है। मेरी बोलते हाँ भाई नसीब चाहिए। हम देखते हैं किसी दुकान में बहुत लंबी लाइन है और जो भीड़, और मेरे पति बोलते हैं उनको बड़ा मजा आता है बिजनेस की बातें करने में। कहते इसका ना रोज का 2 लाख का गल्ला है, कैश रोकड़ा 2 लाख का गल्ला है। जो वाह ग्रेट, 2 लाख रुपए गिनना कैश रोकड़ा, बड़े मजे हैं। बोलते हाँ नसीब चाहिए, पैसा पैसे को खींचता है। अभी उनकी बिलीव कि नसीब चाहिए। तो चलिए हम सब बन जाते हैं नसीबवान। तो आज का वर्कशॉप है कि हाउ यू कैन बी फॉर्चुनेट और लकी इन द मैटर ऑफ मनी, एंड यू कैन बी लकी। ठीक है। तो आज का हमारा वर्कशॉप ये है कि हम लकी कैसे बन सकते हैं पैसे के एरिया में। तो जब आपने अपने बिलीफ देख लिए, थॉट्स देख लिए और अपने इमोशंस देख लिए कि पैसा आता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जाता है, एम आई राइट? प्लीज करेक्ट मी, कोई है यहाँ पर जो इससे अलग थॉट है उसके पैसे के बारे में? इमोशंस आई एम टॉकिंग। सो व्हेन यू आर मेकिंग एनी पेमेंट, हाउ डू यू फील? So, ma'am, it's different for different people. I feel like right now, if I say if I'm making some payment from my family, which is my brother and mom, dad, or someone, then I wouldn't feel bad. I would be more than happy. If I wouldn't be that happy if I spend that much for me also. If I spend that much for my parents and my brother and all of that. But अगर वो ओके। payment, even I think if I'm able to earn that much, if I'm able to spend on clothes and all also, that also I'll be fine. But only when my money will be as a loss may or something like that, then only like I'll feel bad. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मिलोनी। तो अगर पैसे हमारे प्रियजनों के लिए, नियर एंड डियर वन के लिए खर्च करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। मिलोनी का शायद हम खुद के लिए भी इतना मजा नहीं आता पैसे खर्च करने में जितना हमें अपने डियर वंस के लिए हम खर्च कर देता। और जब पैसे का नुकसान हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है। तो हम नुकसान क्या है पैसे का वो भी समझिए। ठीक है। तो फर्स्ट समझते हैं कि ये पैसा है क्या, और वी आर गोइंग टू हैव सम एक्टिविटीज हियर। ठीक है। वर्कशॉप है तो हम आपको कुछ एक्शंस करने हैं। देखिए दोस्तों, सुन के कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्हाट शुड आई से डील्स एंड अदर थिंग्स आर अवेलेबल, कि शनिवार को तेज पत्ता जलाओ तो ये हो जाएगा, 4 ऐसी चीजें करो तो वो हो जाएगा, 5 ऐसी चीजें करो। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट वैलिडेटिंग राइट है कि रॉन्ग है, पर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इज बेस्ड ऑन द बुक मैजिक। ये हमने किया हुआ है, आई हैव आजमाया हुआ है, लाखों लाखों बहुत सारे लोगों ने। ओके, रोंडा बर्न ने खुद आजमाया हुआ है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, एंड इट वर्क्स। ओके, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू फॉलो ऑल द थिंग्स दैट आर रिटन इन द बुक। ठीक है। तो जो हमने वर्कशॉप किया था हेल्थ पर, जो हमने वर्कशॉप किया था रिलेशनशिप पर, और आज हम जो वर्कशॉप कर रहे हैं मनी पर, इन सभी में पहले 2 कंडीशंस हैं। मॉर्निंग में उठने के साथ आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है, 10 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। और सिर्फ बोलना नहीं है, स्मिता सोचेगी चल सुबह में मैं चाय बनाते बनाते थैंक यू बोल देती हूँ। सी, जितनी ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे, ब्लेसिंग्स लिखोगे, उतना ज्यादा फास्ट आपको रिजल्ट दिखेगा। सिंपल है, वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो वी आर हियर ऑन दिस अर्थ स्कूल टू लर्न समथिंग। ठीक है। जिंदगी में जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ सीखने आए हैं, कुछ रूल्स है। उसका पहला रूल हमने जाना था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। ठीक है? आप जिस फीलिंग्स में हैं आप उसी फीलिंग को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो हर वो चीज, अब ऐसे क्यों होता है समान समान को आकर्षित करता है? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर इन द एनर्जी वर्ल्ड। हर एक चीज एक ऊर्जा है। ऊर्जा हमें दिखती नहीं है पर वो ऊर्जा है। हम ठोस हैं पर हम ठोस नहीं हैं, हम फ्लूइड हैं। बहुत ज्यादा जब साथ में फ्लूइड आ जाते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड तो वो सॉलिड बन जाता है। लूजली कनेक्टेड लिक्विड, उससे ज्यादा लिक्विड, लूजली कनेक्टेड गैसियस, और फिर बायोप्लाज्म। यहाँ पर मेरे साथ कितने मेरे प्राणी खेल वाले फ्रेंड्स हैं जो इसे अच्छे से समझते हैं। तो हमारे जो शब्द हैं वो भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, और हम खुद एनर्जी हैं।
और एनर्जी का सिद्धांत बोलता है कि वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट कैसे करती है? एक फ्रीक्वेंसी पर, हाई और लो फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम रेडियो सिग्नल्स लेते हैं ना, सुनते हैं 97.5 एफएम या जो, तो आपको जो चैनल सुनना है आप वहां पर वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी घुमाओगे। आपको जो चाहिए, आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, मिलोनी, अगर मिलोनी चाहते हैं कि मुझे 2 लाख का पैकेज मिले, अब आपने ये सोचा कि मुझे 2 लाख का पैकेज मिले, मतलब वो 2 लाख का पैकेज एग्जिस्ट करता है मिलोनी के लिए। ये पहला रूल है। तो अगर ध्रुव बोलता है कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो उसने जो बीएमडब्ल्यू बोली वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई एनर्जी वर्ल्ड में। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा 4 BHK का रूम, तो ये 4 BHK का रूम ऑलरेडी क्रिएट हो गया, बिकॉज इट इज देयर इन माई इमेजिनेशन। सो वट एवर इज देयर इन योर माइंड, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो स्मिता दर्जी ने अगर कुछ क्रिएट किया है, इमेजिन किया, तो वो है, पर वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है और आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। करना क्या है, when you are into gratitude, you bring your frequency up and you match that frequency and you get it and you say coincidence हो गया, wow he is lucky. This is the formula to be lucky. Okay, तो फर्स्ट वाइब्रेट अप। अब अच्छे से वाइब्रेट कैसे करेंगे? आप बोले प्रगति मैं तो बड़े अच्छे मूड में थी, अच्छे से, देखो तो इन्होंने ऐसा मेरा मूड खराब कर दिया ना आने के साथ, और मैं एकदम लो हो गई। ठीक है, तो अब क्या करें कि आप हमेशा ऊपर वाइब्रेट करें। तो ये याद रखें कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो दोगे वही घूम के आपके पास आएगा, और बहुत गुना बड़ा होके आएगा। तो इससे डर जाना है क्या? नहीं, इसको गूगल मैप बना के जिंदगी में चलना है। सो हाउ डू आई बिहेव विद अदर्स, व्हाट डू आई डू टू अदर्स, करेक्ट? अब मेनी टाइम्स फ्रेंड्स, देयर इज अ पैटर्न, एक पैटर्न बन गया है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग दैट ना। हम वो चीज प्रैक्टिस कर करके हम उसमें परफेक्ट हो गए हैं। अब एक दिन में आप वो प्रैक्टिस तोड़ नहीं सकते, वो पैटर्न तोड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। सोते वक्त आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोना है। ये सब आपको हेल्प करेंगे आपके पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे। आपके थॉट्स और वर्ड्स एनर्जी हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ उस पर फोकस रखना। अब क्यों फोकस रखना? क्योंकि जिस पे आप फोकस डालते हो वो बढ़ जाता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट हमने की थी पिछले वाले सेशन में। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। देखिए, अब अगर मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा और मैं उसे ध्यान नहीं देती हूँ, है ओके, आई नो इट्स हर्टिंग, बट सडनली कुछ और काम आ गया, मैं उठा के ये करने लगी, सडनली वो होगा भी शायद सिर दर्द पीछे, ध्यान में नहीं है, वहां हमने अटेंशन नहीं डाला है। ठीक है, एंड फीलिंग इज द सीक्रेट। नहीं, मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स। ये रूल्स आपको थ्रू आउट 21 डेज आपको ये रखनी है। तो आपकी फीलिंग इज द सीक्रेट। तो जब हम मनी की बात कर रहे हैं आज, मनी के लिए आपके क्या फीलिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे किसी ने मांगे पैसे और आप थोड़े दुखी हो गए कि यार पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कहीं कहीं हम जाते हैं, कुछ देखते हैं, अरे वाह मस्त है, घूमते फिरते मजा आती है, और बोलते मैडम इतने मिलेंगे, अरे यार देख ये तो मार्केटिंग स्टंट निकला, देखा, इससे पैसे कमाने की, क्या बुरा है पैसा कमाना, इट्स ऑल राइट, एवरीबडी शुड अर्न, राइट? यस और नो? तो मनी इज ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, अब इस एनर्जी को जब आपको अट्रैक्ट करना है, तो पहले तो आपको अपने बिलीफ को ठीक करना है। पैसा बहुत अच्छी चीज है, पहली बात, बहुत अच्छी चीज है पैसा। दूसरी बात, पैसा होना बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, पैसा होना और पैसा टिकना अलग बात है। नेक्स्ट थिंग, पैसा होना, पैसा टिकना और पैसा खर्च करना राइट वे में अलग बात है। So this is all the science about money. Money matters. I repeat, पैसा कमाना very important.
अब पैसा इसलिए नहीं कमाना कि मुझे इज्जत चाहिए या पैसा नहीं है तो वैल्यू नहीं है। आप क्या सोच के पैसे को कमाते हो? तो पैसा बहुत अच्छी चीज है, तो पहले बहुत अच्छी चीज मतलब कैसे बहुत अच्छी चीज? I mean, see what are your feelings about money. If you think that I will have the money and I'll keep it and I'm not going to spend it, तो it will not happen. क्यों? क्योंकि पैसा मैंने कहा एनर्जी है, एनर्जी। इट इज नॉट दिस मनी इज सिर्फ वो नोट, वो पैसा नहीं है, वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके पीछे एनर्जी है, एनर्जी वर्ल्ड में हम हैं। तो अब आपको जब ये एनर्जी को अट्रैक्ट करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारी गुड फीलिंग्स लानी है, हाई इमोशंस में रहना है। अब गुड फीलिंग्स कैसे? आप बोलोगे मुझे तो बहुत गुड फीलिंग्स है पैसे के लिए, लेकिन प्रगति पैसा आता नहीं है। प्रगति आता है लेकिन निकल जाता है, टिकता नहीं है। तो एक बात सोच लीजिए कि पैसा टिकाना क्यों है? तो ये एनर्जी का पर्पस क्या है? एनर्जी का पर्पस क्या है? लेट मी टेक यू ऑल बैक टू द ईयर व्हेन देयर वाज डीमोनेटाइजेशन। जब 1000 के 500 के नोट बंद हो चुके थे, था तो वो पैसा ही ना, फिर नहीं चला, वैल्यू नहीं उसकी, राइट? या आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आप ऐसे देश में चले गए जहां वो नहीं चलता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एनर्जी तब काम करती है जब, या इट इज सपोज टू फ्लो। एनर्जी तब काम करेगी जब वो फ्लो करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत अच्छी एक मान्यता आपको बदलनी है, आपको ये मान्यता समझनी है कि पैसा आ जाए और मेरे पर्स से निकले ना, बस मेरे पर्स में नोट भरे रहें। करेक्ट? तो ये क्या होगा? कोई भी चीज जब ज्यादा एनर्जी होगी ना तो नुकसान करेगी। एनर्जी फ्लो करती रहनी चाहिए, इट विल ऑलवेज फ्लो। तो आपको पैसे लेने हैं लेकिन आपको इंश्योर करना है कि वो पैसे आपसे आए और आपसे फ्लो करें। जब तक वो फ्लो नहीं करेगा तब तक दूसरा पैसा आएगा नहीं। सो इन अदर वर्ड्स, वी आर ओनली द चैनल्स ऑफ मनी। सो व्हेन मनी गोज थ्रू यू, ओके, तो इन सिंपल वे, सपोज वी आर अ हाउस वाइफ। ठीक है, तो हम हाउस वाइफ है तो हम कितना पैसा हमारे पास से जाएगा, क्या मतलब? मैं तो कुछ नहीं कमाती, बट माय डियर फ्रेंड, you pay to your maid, you pay to the grocer, you pay to the सब्जी वाला, you pay to the laundry वाला। अब क्या कर रहे हो? आप उस एनर्जी को ले रहे हो पति से या बच्चों से, जो भी, और आप उसको फ्लो कर रहे हो। आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब आप बहुत सारा पैसा लोगे और बहुत सारा मजा फ्लो करोगे, राइट? अगर बहुत सारा पैसा पड़ा है पेटी में और आप कुछ नहीं कर रहे, आप, आई मीन व्हाट इज द फन? Fun in money is when you spend it. When you spend it, you get more. हाँ, ये भी एक मान्यता है। रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ। तो आपकी क्या बिलीफ है? पैसे खर्च करने से कम हो जाते हैं, उसे बहुत बचा बचा के रखना चाहिए, बहुत संभाल के खर्च करना चाहिए, सोच समझ के। चलिए इस पे आपके बिलीफ देखते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स और यू मे राइट डाउन इन योर बुक्स। आप पैसे क्यों बचाना चाहते हैं? जैसे यू सेड सिक्योरिटी, ओके, तो व्हाट सिक्योरिटी? यस मिलोनी। Ma'am, just 2 years back, one of my friends, he was like 5 years elder to me. So that time he had told me that, the more you spend, the more you'll get. So his context of saying this was, कि, it's fine sometimes if you treat everybody, you have it, others are not that privileged, it's okay, ye wo. And he has said that line to me that the more you spend, the more you'll get. So right now, when you said it, I could remember that, and I think that that time only that line stayed with me, and it did bring a little change in me after that. So I was not jitna like conjuice, I like let go of stuff later. ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके बिलीव्स क्या है पैसा स्पेंड करते वक्त? ये मेरा क्वेश्चन था। या पैसा जब हम सेव करते हैं तो क्यों सेव करते हैं? सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी? तो भारती ने कहा था सिक्योरिटी में, मुझे याद है। भारती, क्या है आपके मन में जब आप बोलते हो पैसा जमा होना चाहिए, कि आज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो मुझे क्या सिक्योरिटी मिलती है?
क्यों करते हैं? I want to save money so that I can spend it where it is when it is much required ओके, तो व्हेन इट at इज the मच time in the रिक्वायर्ड, व्हेन future. इट, हाँ, तो व्हाट इज द मच रिक्वायर्ड टाइम इन द फ्यूचर? For me, like now, right now, for my kids' educations, फाइन, for we are buying the new house, so their ओके, फाइन, interior. For my फाइन, mother is staying alone, so for her, if in case emergency comes in your illness, so that time I can spend money. perfect. My dear friend, stop there. Drew has also given the answer for the emergencies, है ना, इमरजेंसी के लिए, हाँ, am I right? Yeah, he has told that we need money for emergency. I want to save money for any emergency. रुक जाइए प्यारे दोस्तों, जो लोग YouTube पर भी अगर देख रहे हैं और यहाँ पर भी वर्कशॉप में आए हैं, तो रुक जाइए, रुक जाइए, एक बार वापस सोचिए। आप सोच समझ के बैठे हैं कि इमरजेंसी आने ही वाली है और पैसे होने चाहिए। मैं नहीं बोलती कि सेव नहीं करना चाहिए, 101% सेव करना चाहिए, बट अगर आप सेव करते वक्त ये सोच के सेव कर रहे हैं कि ये मुझे मुसीबत में काम आएगा, तो आप मुसीबत को भी क्रिएट कर रहे हैं कि ये ले मेरी मुसीबत और ये ले मेरे पैसे, अब मैंने गेम खेली बराबर। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप इमरजेंसी को क्रिएट कर रहे हो कि मैंने बुढ़ापे में काम आएंगे ना, अरे बीमारी में काम आएंगे। अरे बच्चा, तूने सोच रखा है बीमारी आनी आनी है और तेरे को पैसे लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जितना कमा रहे हैं ना। नथिंग रॉन्ग, पैसे होने चाहिए, पर आप बोलो पैसे चाहिए बहुत मजे करने, यार पूरी इंडिया घूमनी है, पूरा वर्ल्ड घूमना है, सेहतमंद खाना है मुझे, करेक्ट, 5 6 10 8 नौकर रखने हैं, मनी फ्लो होगा ना। अभी मैं 4 लोगों को सैलरी देती हूँ, कितना मजा आएगा जब मैं 40 लोगों को पैसे दूंगी, मैं बहुत बड़ी चैनल हो जाऊंगी पैसे की। तो पहले तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल देना, ये हमारे थॉट फॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में हम बचपन से सीखते हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे नाना नानी ने, दादा दादी ने पैसे बचाए थे कि बुरे वक्त में काम आएंगे। तो भैया बुरा वक्त क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? जब हम बोल रहे हैं आपके शब्द भी एनर्जी है, आपके फीलिंग्स एनर्जी है, तो आप पैसे को सिर्फ समझ रहे कि बुरे वक्त में काम आने के लिए है। प्लीज इरेज दिस फ्रॉम योर माइंड। मिरोनी, आई होप इट इज क्लियर। प्रूफ, पैसा सेव करना है, अच्छी बात है, होगा मेरे पास हमेशा। और हमेशा आप देखिए, जिन्होंने भी बुरे वक्त भी निकाले हैं, क्या ऐसा हुआ है कि आपको पैसे की जरूरत थी और आपको पैसा मिल गया है? यस, नो, बोलिए। एवरीबडी whoever इज प्रेजेंट, राजेश आई एम आस्किंग यू, अशोक पटेल आई एम आस्किंग यू, आप लोगों ने काफी जिंदगी देखी है आगे। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बस जरूरत पड़ गई, क्या आपको वो मिला है कहीं से भी? Yes, ma'am. Yes. बिल्कुल मिलता है मैम। 101% मिलता है। यस राजेश, यस, मिलता है। थैंक यू अशोक। तो फिर दोस्तों हम क्यों सोचते हैं कि कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा बचाना है? ठीक है, ये मुझे बाहर निकलवाना था, और ये बहुत डीप सीटेड थॉट्स है हमारे, जिसे हमें बाहर निकालना है। और ये कैसे निकलेंगे? ये निकलेंगे जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, नो मैटर आपकी करंट सिचुएशन अभी जो भी हो। अगर आप सोच रहे हो कि अभी आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो, पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब आप अनग्रेटफुल हो, तो आपको मैं आज फॉर्मूला बताती हूँ। नंबर 1 फॉर्मूला है, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट, इट इज 9:30। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर गेटिंग मनी इज, you have to be grateful for whatever money you have received till now। हिंदी में बोलती हूँ, आपको अब तक आपने जितना धन आपको मिला है, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, थैंक यू बोलना है। तो आप बोलोगे भाई प्रगति, हम तो हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं। नहीं, अब तक के पैसे, कौन से पैसे? जो आपने कभी कमाए नहीं। कितनी बार हमने सुना है, अरे मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मैंने मेहनत की है छोटी उम्र से, मैं तो 16 साल से कमा रही हूँ, मैं तो 18 साल से नौकरी कर रही हूँ, और मैंने इतनी पूरा घर बनाया। मैंने, हेलो, आप जब पैदा हुए थे ना,
तो अपने आप से नहीं टपके आसमान से, दो लोग लगे थे, ठीक है, जिन्होंने आपको, जिनको हम माता पिता कहते हैं, करेक्ट, उनके इससे आप आए, अपने आप से बाहर नहीं टपके। डॉक्टरों की फीस देनी पड़ी थी, अपने आप से उठ के चलने नहीं लगे थे। बहुत कुछ हुआ है आपके और पहले आने से, आपकी एंट्री इन दिस अर्थ स्कूल टिल टुडे। जितना भी पैसा ना सिर्फ आपको मिला, आपने कमाया, बल्कि जो दूसरों ने भी आप पर खर्च किया जब आप कमा नहीं रहे थे, इन सभी पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। तब कहीं जाके आप इस लेवल पर आओगे कि हम प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या है, पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना। तो जहां भी आप हैं, जैसे भी हैं, आराम से बैठ जाएं, जस्ट बी सीटेड, ओके, इन अ प्लेस क्वाइटली, सी दैट नेक्स्ट 10 मिनट्स एटलीस्ट और 7 मिनट्स नोबडी शुड डिस्टर्ब यू। आराम से बैठे, रिलैक्स हो जाएं, कंधे ढीले, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, इनहेल, exhale slowly. Inhale, hold, exhale slowly. Relax your body. Put your attention on your body. अपना ध्यान अपने शरीर पर, सिर के मध्य में, फोरहेड पर, अपनी आंखों पे, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, on your abdomen, on your legs, on your feet, on your back, shoulders, कंधों पर ले जाए ध्यान, back of your neck, smile, inhale, hold, exhale. बिल्कुल शरीर को शिथिल रखें, स्माइल करें। याद रखें, ये दुनिया का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। जिसके पास पैसे के लिए कृतज्ञता है, उसे और भी दिया जाए, प्रचुरता होगी। और जिसे के पास नहीं है, जो ग्रेटफुल नहीं है, जो भी उसके पास है, वो भी ले लिया जाए। आइए हम हमें दिए गए पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करें। बचपन में जाएं, बिल्कुल बचपन में, जब हम इस दुनिया में आए थे, बिल्कुल निर्भर थे दूसरों पर। हमारे इस दुनिया में आने के लिए जिन्होंने भी पैसे खर्च किए, उनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उस पैसों के लिए जो मेरी डिलीवरी के लिए दिए गए, मेरी दवाइयों के लिए दिए गए। उन पैसों के लिए धन्यवाद। मैंने तो नहीं कमाए, पर मुझ पर खर्च हुए थे। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दैट मनी। उस पैसे को, उस एनर्जी को फील करें जो आपके लिए खर्च हुई थी, और उस पैसे को आप थैंक यू बोलें। हमारे पास रहने के लिए घर था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाउस। अपने उस घर को याद करें बचपन के, जैसे भी था, एक कमरा, दो कमरा, किचन छोटा सा हो, चॉल हो, फ्लैट हो, जैसा भी घर था, उस घर के लिए धन्यवाद। उस घर में जो पैसे लगे थे मेरे दादाजी के, पापा के, उनके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे हमेशा खाने को मिलता रहा है बचपन से। माँ के बनाया हुआ खाना खाते थे, सब्जियां खाते थे, उस खाने के लिए धन्यवाद। स्कूल जाते थे, स्कूल में दफ्तर मिलता था, बैग, कपड़े का ही क्यों ना हो, खाकी कलर का, उस बैग के लिए धन्यवाद।
कॉपी किताबों के लिए धन्यवाद। चाहे वो दूसरे की किताबें यूज करती थी मैं, जो पहले पास हो जाते थे ना पहले क्लास में, उनसे ले लेती थी मैं परीक्षा खत्म होने पर उन्होंने तो पैसे खर्च किए थे ना उसके लिए। उन पैसों के लिए धन्यवाद जो मेरी किताबों पे खर्च किए गए। उन जूतों के लिए धन्यवाद, उस यूनिफॉर्म के लिए धन्यवाद जो मैं स्कूल में पहन कर जाती। स्कूल आने जाने के लिए मुझे पापा छोड़ते थे, मम्मी छोड़ती थी। कभी ऑटो में जाते थे, कभी बस से चले जाते थे। उन पैसों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझ पर खर्च हुए। मुझे जो आइसक्रीम खिलाया करते थे पापा, चॉकलेट लेकर देते थे, हमें जब वैकेशन में कहीं घुमाने ले जाते थे, रानी बाग ही क्यों ना हो, एक ही गार्डन क्यों ना हो, बगीचा ही क्यों ना हो, सेंग चने मूंगफली खिलाते थे। उन पैसों के लिए धन्यवाद। जो मेरे पास खिलौने थे, जो कंपास बॉक्स था, जो पेंसिल थी, जो पेन थी मेरी फेवरेट, उन सब के लिए पैसे दिए गए थे। उन पैसों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट मनी। उस फ्रॉक के लिए, उस शर्ट के लिए धन्यवाद जो मुझे बर्थडे पे लोगों ने गिफ्ट दिए, जो मुझे खर्चियां मिली। मासी ने, बुआ ने, दादी ने, नानी ने हाथ में पैसे थमा जाते थे, 1 रुपए, 5 रुपए। उन पैसों के लिए धन्यवाद जो मुझे गिफ्ट में मिले। वो पैसे जो मैं साइकिल लेकर चलाती थी किराए पर, उस पैसों के लिए धन्यवाद। खेलने जाते थे हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी कभी सीखने मम्मी पापा ने बड़े क्लासों में लगाया था। उन सभी क्लासों में जो पैसे दिए उनके लिए धन्यवाद। मुझे चश्मा लग गया था बचपन, उस चश्मे वाले डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए धन्यवाद। उन पैसों के लिए चश्मा लगाती थी, उस चश्मे के पैसे के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द मनी। जो भी चीजें, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, जो भी चीजें, तेल, ऊपरी का तेल लगा के स्कूल जाते थे, रिबिन पहनते थे, उन रिबिन के पैसों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ पैसा मुझ पर खर्च हुआ है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, इतनी सारी गिफ्टें मिली है। जिन्होंने मुझे गिफ्टें दी हैं याद करिए, मासी, ताया जी, फूफी, बुआ जी, चाचा जी, जिन्होंने कुछ दिए, नेबर्स ने कभी कुछ दिया, बर्थडे पे गिफ्ट दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैड। थैंक यू फॉर द मनी वी पेड फॉर द डेंटिस्ट। जब दांतों में दुख, पैसे थे मेरे पास, उसके लिए थैंक यू। टीवी देखते थे हम नेबर्स के घर जाकर, वीसीआर पे, वीडियो पे मूवी पिक्चर्स देखते थे। उन पैसों के लिए धन्यवाद। किसी ने भी खर्च किए, मजे तो मैंने लिए ना टीवी के। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फोन कॉल्स करते थे हम लैंडलाइन पर जाकर, नेबर्स के यहाँ से कॉल करते थे। उनको धन्यवाद, उन पैसों को धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, पानी यूज करते थे, उन सभी के बिल हमारे मम्मी पापा ने दिए। उस सभी पैसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल गई, कॉलेज गई, कॉलेज में जो मैंने पैसे मुझ पर खर्च किए हैं, उसकी फीस के, क्लासेस के, ट्यूशन के, उस सारे पैसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा ब्याह हुआ, शादी हुई, उस पर मम्मी पापा ने पैसे खर्च किए हैं। उन सभी पैसों के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जो भी पैसा आज तक मैंने खर्च किया है या मुझ पर खर्च हुआ है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ। इतनी मेरी जिंदगी आरामदायक हो गई है, मैं आराम से मैं निकली हूँ, आज तक स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Slowly open your eyes now. What was your experience? Could you feel the gratitude I want to know from all of you? ये जो हमने छोटी सी अब एक्सरसाइज करी, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? Could you feel? Could you go back into the past?
यस, पार्टी, हाँ, रश्मि। वेरी मच इमोशनल मैम। यस, फील हुआ, सब कंपास, वाटर बॉटल, छोटा सा फ्रॉक, क्लिप्स याद आए यस। बचपन, कितना पैसा माँ बाप ने हम पर डाला है ना, पूरा बचपन, राइट। और उस सारे पैसे के लिए हमें, यस रश्मि। वो मैं छोटी थी तब मेरा पैर है ना साइकिल के बीच में आ गया था, तो बोरीवली में तभी वहां पे मुकुंद डॉक्टर करके थे फाटक के पास। तो उन्होंने क्या बोला था कि वो जो नीचे का जो पंजा है वो काटना पड़ेगा पूरा, वो हो गया था उसमें, फर्स्ट हो गया था। तो मैं डैडी ने घर पे रोज ड्रेसिंग कर करके वो मेरा पैर बचाया है। तो वो सब याद आया मुझे। सुपर, थैंक यू। सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, हम भूल जाते हैं, करेक्ट। तो जब तक ये फॉर्मूला है, रिमेंबर, आई एम गिविंग इट टू यू इन, क्या, जब तक आप पास्ट की सारे पैसे, आज हम पैसों की बात करें, तो पास्ट से अब तक मिले हुए सारे पैसों के बारे में ग्रैटिट्यूड नहीं करते। मैंने तो आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया अभी, ठीक है। तो अब से 7 दिन में आप जब भी फ्री बैठे तो ये ना सोचे कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, अरे ये तो बहुत ऐसी है वह, ये फालतू की बातें ना करके, क्योंकि थॉट्स इज एनर्जी। तो आपके थॉट्स ये डालें कि क्या चीजें थी मेरे पास जिसके लिए मैंने थैंक यू नहीं बोला, कौन से अंकल मेरे रह गए जिसने मुझे गिफ्ट दी थी और मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, कौन सी आंटी ने मुझे खीर बना के खिलाई थी और मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, खाया पिया खुश हो गई, बच्ची थी ना, अब तो बड़ी हो गई। अगर उन्होंने मुझे खीर बना के खिलाया तो खीर के लिए तो पैसे लाए होंगे ना, आंटी ने पैसे दिए। तो हम बात करें पैसों की, हर उस चीज में जहां पैसे लगे हों और आपने एंजॉय किया, सरवाइव किया है, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 1 है। इज इट क्लियर? आई जस्ट मेड अ स्मॉल थिंग नाउ। एवरी डे व्हेन यू आर सिटिंग लाइक दिस विदाउट एनी वर्क, आराम से बैठे हैं, तो आपको ये करना है। आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर, ठीक है, पास्ट के लिए। अब आपको क्या करना है, चार्ट पेपर या एक कार्ड लेना है, जैसे हमने हेल्थ के लिए लिया था, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वैसे आपको एक चार्ट पेपर लेना है। उस पर आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए, मैं ये ग्रुप में डालूंगी, आप नोट कर सकते हैं, उस सारे धन के लिए, उस सारे पैसे के लिए धन्यवाद जो मुझे आज तक मिला है, या आज तक मुझे दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दैट चार्ट, यू हैव टू टेक दैट शीट एंड यू पुट ऑन अ मनी, क्योंकि ये पैसा आपको फीलिंग आएगी ना। तो आप 50 का नोट ले लें, 20 का नोट ले लें, 100 का ले लें, 200 का ले लें, 500 का ले लें, आपके ऊपर है। आपको नोट लेना है और उसके ऊपर आपको ये चिट लगानी है, ठीक है। और आपको वो हर जगह लिखना है। आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट मैजिक, अब ये मैजिक हो गया उस डॉलर बिल में या उस रुपए में। आपको उस नोट को सुबह, दोपहर और शाम, या जितनी बार चाहें, आपको उसे हाथ में लेना है, उस पैसे को जिस पर आपने ये लिखा है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। और आपको फील करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको 3 बार थैंक यू बोलना है और उसको रख देना है। आप अपने वॉलेट में एक रख सकते हैं, आप अपने वार्डरोब में एक रख सकते हैं, क्या नोट ही है। नोट पे आपको प्लीज उस पे स्टेपल ना लगाएं, उसको चिपकाए ना, आप उसको ऐसे पिन से, यू पिन से आप उसको ऐसे लगा के रख सकते हैं, ठीक है। आपको वो बिल ऐसे रखना है ताकि वो आपको दिखे, अब से 7 दिन तक आपको रोज दिखे। दिन में 3 बार आपको उसे देखना है, हाथ में लेना है, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट योर लाइफ। Is this activity practice clear everybody? Just show me a thumbs up कि आपको ये clear लगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। I want to complete many things, बहुत सारी चीजें हैं। मैम Yes, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। Perfect. Yes, can you show it? दिखा सकते हो आप वापस, रश्मि। हाँ रश्मि, एक मिनट, लास्ट आई विल टाइम का स्पॉट। वैसे ही सेव करके रखा है। हाँ तो यस, तो जैसे आपने लिखा थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, और उन्होंने एक हार्ट भी बनाया है,
वेरी गुड। तो ऐसे आप इसको हाथ में लेना है, ठीक है, थैंक यू और थैंक यू। तो आपको इसको हाथ में लेना है दिन में 2-3 बार, ठीक है, और वो फील करना है उसको। आप इसको वार्डरोब में एक लगा सकते हैं, कहीं ऐसे लिख के नोट के साथ। और लगाने से ज्यादा उसको जब आप हाथ में लेते हो ना, थैंक यू बोलते हो, उस पैसे को अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये 2 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मनी मैग्नेट कैसे बनना है, ठीक है। तो मनी मैग्नेट हम तब बनेंगे जब हम पैसे के लिए हमारे इमोशंस ठीक करें। हमारे इमोशंस क्या हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, बिल भरते वक्त अच्छा नहीं लगता। जैसे लाइट का बिल बहुत आ गया, गर्मी है, एसी ऑन है, सभी रूमों में एसी ऑन है, और बिल ज्यादा आ जाता है, ठीक है, थोड़े दुखी हो जाता है, गर्मी आ गई यार, बिल बहुत आ गया। अब याद रखें कि एक एनर्जी है ना, ठीक है। तो जब आप इसको देते हो ना, सी, रूल नंबर 2, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे आप देते हो ना, वैसे ही आपको वापस आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आज के बाद अभी के बाद आप जो भी जब भी पेमेंट करें, बहुत खुश होकर करें। यार नहीं होता, अरे हो जा। देखो, जब आप लाइट बिल भरते हो तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला अडानी हो, टाटा पावर हो, या और कोई लाइट कंपनी हो, उन्होंने आपको पहले लाइट दे दी, 1 महीना भर आपने लाइट वापरा, उसके बाद उन्होंने बिल भेजा है। यस और नो? कैन यू बी ग्रेटफुल दैट ही ट्रस्ट यू, बिलीव्स यू कि आप बिल भरोगे, करेक्ट। और अगर बिल ज्यादा आया है तो आपने उसको यूज किया है ना, कैन यू बी ग्रेटफुल कि आप इतनी गर्मी में भी मस्त एसी लगा के बैठे हो, मजे ले सकते हो, आराम की नींद सो सकते हो बिना पसीने के। कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर दैट कंपनी? बिकॉज ऑफ द लाइट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी जिंदगी आसान हो गई है, और हम उसकी कुछ कीमत चुका रहे हैं। हमें कोई पत्थर तोड़ने नहीं जाना पड़ता, हमें कोई पानी घड़े लेकर, ये लकड़ियां काट के गर्म पानी करो, नहीं गीजर ऑन किया गर्म पानी आ गया, isn't it? बी ग्रेटफुल। तो थिंक ऑफ द बेनिफिट्स। कोई भी पेमेंट करते वक्त आप ये सोचे कि मुझे कितनी सुविधा हुई। सेकेंड एग्जाम्पल, और दुख कब होता है, रिक्शा का किराया बहुत आ गया, अब चल रहे हो, ठीक है, और ये पहले तो 70 रुपीज आता था, सीधा 90 रुपीज हो गया, इतनी ट्रैफिक है, इतने पैसे दिए, ओ माई गॉड, ये रिक्शा वालों ने लूट मचाई है। रुक जा, रुक जा, पैसे तो आपको उसे देने हैं ना। जब आप पैसे दे रहे हैं, नोट निकालेंगे, अपनी तरफ रखेंगे उसको, और ब्लेस करेंगे उसको, खुश होके देंगे। क्यों खुश होके देंगे? बिल ज्यादा आ गया इसलिए खुश नहीं होंगे, लेकिन इसलिए खुश होंगे कि उन्होंने आपको सही सलामत पहुंचा दिया उस जगह पर। अगर रिक्शा नहीं होती और न ट्रेन में लटक के आते तो क्या होता, करेक्ट। तो थिंक ऑफ द बेनिफिट, उसको ब्लेस करे कि शुक्र है भैया। जैसे मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, 5:45 जाती हूँ, तो कभी कभी वो लोग नहीं होते बारिश में, ठंड में, मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड होता है उन रिक्शा वालों का जो सुबह सुबह में उठते हैं। देखिए, मैं तो उठती हूँ नौकरी के लिए, लेकिन वो बेचारा उठ के आ गया, इतनी बड़ी बात है, ठंड में आ गया स्वेटर डाल के, हाँ मैडम चलो। मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, थैंक यू भैया आज तुम आए, अगर तुम सो जाते तो मैं मेरे लिए दिक्कत हो जाती। तो आई एम सो हैप्पी, correct? So be grateful when you are paying money. Is that clear? Please, yes, no, thumbs up. Everybody? और कैसे ग्रेटफुल होना है? पैसे देते हो गुड फीलिंग। अब जब जो फीलिंग गुड नहीं आ रही प्रगति, तो रुक जाओ, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, कहीं रूम में चले जाओ, कहीं बैठ जाओ 2 मिनट, थैंक यू का जाप करो। लेकिन जब भी पेमेंट करो, अच्छे मूड में हैप्पी होके करो, बिकॉज द वे यू विल गिव इट बैक, इट विल कम बैक। तो ये मत सोचो कि हाय पैसा कम हो गया, पैसा चला गया। जब आपने पैसा दिया तो क्या होना है, घूम के आने वाला है। जैसे मिलोनी, अब आपने समझा, आपके किसी फ्रेंड ने 5 साल पहले कहा था कि द मोर यू स्पेंड मोर इट विल कम। तो व्हेन यू आर स्पेंडिंग, यू आर स्टार्टिंग अ सर्कल। जैसे हम पासिंग द पार्सल गेम खेलते हैं, तो अगर आपने पास ही नहीं किया तो आपके पास कैसे आएगा? तो आपने पैसे दिए तो वो पास होते जाएगा। तो कैसे दोगे? हैप्पी हैप्पी दोगे, तो मैनी फोल्ड होके आपके पास आएगा।
बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट टू अट्रैक्ट द मनी। ठीक है, हमने डाला था हाउ टू बिकम अ मनी मैग्नेट, हाउ टू मेक मनी स्टिक टू यू। पैसा कैसे चिपकेगा? बोलोगे अरे इतना खर्च करती हूँ वापस आ जाता है, पर्स में पड़ा ही रहता है। और आज के बाद जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप शेयर करोगे, आपको बहुत सारा मनी मैजिक मिलेगा इंस्टेंटली। करेक्ट? ऐसे ही बुक उठाई, देखा अरे इसमें 500 रुपये पड़े, कहाँ से निकला है? ओ मैं रख के भूल गई होंगी। अरे ये पर्स में पैसे पड़े हैं, अरे यहाँ से पैसे निकल आए, ओहो। कोई आके दे देगा, अरे भाई तूने पैसे दिए थे, तू भूल गया, ले तेरे पैसे ले जा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने इसको पैसे दिए थे। That. Or you get gifts, or you get 50% discount, you get something for free. All this is money. All this is money. There is nothing free. कुछ भी फ्री नहीं है। कभी आप फ्री इसलिए है क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन किसी ने तो उसके पैसे दिए हैं, ये याद रखना। जब आपको कोई चीज 50% पे मिलती है, 100 रुपए की चीज 50 पे मिलती है, बनाने वाले को तो उतने में पड़ी है, लेकिन वो आधा खर्चा ले रहा है। तो बी ग्रेटफुल, दैट इज द मनी कमिंग टू यू। सो बी ग्रेटफुल फॉर द मनी, वेलकम इट। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो मतलब आप वेलकम कर रहे हो। अब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो और रिश्तेदार आपको बहुत आवभगत करता है, अरे अरे बैठो बैठो बैठो, नहीं नहीं चाय पियो, अरे खा के जा, अरे बैठ ना मजे कर, आजा अंदर बैठ आराम से बैठ। आप एकदम खुश हो जाते हैं, अरे कितना प्यार देती है, अरे बहुत बहुत खुश हो जाती है मुझे, राइट? अब आप जाते हो कि बोलते हैं अच्छा बैठो, क्या मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ मुझे भी बाहर जाना था, आप सोचिए ओ मैं बेकार ही आ गई यहाँ पर, नॉट वेरी हैप्पी। आप कैसे ट्रीट करते हो मनी को? अब मनी को ट्रीट कैसे करना है कि आपके पास आया तो आप खुश, दूसरे के पास आया तो खुश नहीं। नहीं, वॉट फीलिंग्स यू आर कीपिंग फॉर मनी इज इंपॉर्टेंट। आज मेरी दोस्त है, हम दोनों खुश हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं, अचानक से उसने गाड़ी खरीद ली। अब वो नहीं आती, मैं सोचती हूँ हाँ वो तो, यार तू तो बड़ी आदमी हो गई ना, अभी तुम लोग बड़े हो गए। अब ये वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। तो क्या आप, दोस्त तो वही है, अब उसके पास कार आ गई तो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कार से, पैसे से वो जलन दिखा रहे हो या बुरा फीलिंग दिखा रहे हो कि अब वो घमंडी हो गई है। तो आप वो घमंड है ना, वो दोस्त के लिए नहीं है, उस पैसे के लिए है। अंडरस्टैंड? क्योंकि दोस्त तो वही है ना, पैसा आने से वो बुरा हो गया मतलब वो पैसा बुरा है? नो 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 नो। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकंड थर्ड वॉट एवर आप नोट करिए, प्लीज नोट डाउन वॉट एवर आई एम सेइंग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस फॉर यू इज वेन एवर, जब भी, हाउ टू बिकम मनी मैग्नेट, जब भी आप किसी के बारे में सुने कि किसी को पैसा मिला, किसी की नौकरी लग गई, किसी का फायदा हो गया, किसी को कोई चीज डिस्काउंट पे मिल गई, कोई बोलेगा अरे वाह ये कब, बोले हाँ अरे सेल पे लगा हुआ था, सोच कितने का होगा, सोचेगा, कितने का, अरे 50 रुपए मिला, wow, you'll be happy for that person. Great, so nice. Why? Like attracts like. If you are in good feeling, you give the message to the universe कि I'm liking it, I'm loving it. फ्रेंड ने BMW लिया, ये भले भले, चलो ट्रीट करते, चलो मजे करते, वाह मजा आ गया, बहुत खुश हो जा तू, भगवान तेरा बहुत ज्यादा भला करे। आप सोचिए कि इतनी दुआएं देनी है, हाँ इतनी देनी हो सके तो मुंह से, नहीं तो मन से। क्यों? Like attracts like, what goes around comes around. This is the way to make money stick to you. I hope you are getting it. Correct? तो जब एग्जाम्पल, अंबानी ने अपने बेटे की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में खर्चा किया, कितने लोगों को लगा बुरा, यार इतना पैसा क्यों खर्च किया, इससे तो ये ऐसे करता, इससे तो वो वैसे करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके पैसे हैं, उसकी एनर्जी है। आपको मजा आया कि नहीं? देखे मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं तो रोज अपडेट देखती थी, रोज भले भले करती थी, एज इफ आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड आई यूज्ड टू वाओ। रिमेम्बर मैंने एक असाइनमेंट दिया है, आपको सारे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो आप बार बार बोलते हो, तो अब के बाद आपको बनना वाओ, सुपर, वंडरफुल, ग्रेट, क्या मजा आ गया। अगर आप टीवी में भी देखते हो कि कुछ किसी, कोई अचानक से अमीर हो गया, किसी की लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, मजा आ गया, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी फॉर द मनी, फिर चाहे वो किसी के पास भी आया हो। ठीक है?
क्लियर? हाउ टू बी मनी मैग्नेट? यस। चलिए, अब इसके आगे क्या करना है, हम बता रहे थे कि जब हम पेमेंट करते हैं तो खुशी खुशी पेमेंट करनी है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, जितनी भी बिल्स हैं, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, नेक्स्ट एक्टिविटी इन द वर्कशॉप, जितने भी बिल्स हैं आपके घर के, पास्ट के बिल्स, ठीक है? तो अब महीना चल रहा है अप्रैल का, ठीक है? तो अप्रैल महीने मतलब मार्च के जितने भी बिल्स हैं अप्रैल के, उस बिल्स को आपको लेना है, मंथली बिल्स को, और अगर आपने वो बिल्स चुका दिए हैं तो आपको उस पे लिखना है थैंक यू पेड, THANK, थैंक यू पेड, धन्यवाद, पेमेंट किया, जो हो गए उन पर। अब जो बिल्स अनपेड है, आपके पास पैसे नहीं, आप सोच रहे हो बाद में भरूंगी, 20 तारीख के बाद भरूंगी, 25 को भरूंगी, तो जो बिल्स आपने नहीं भरे हैं आपको उन्हें लेना है और उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है? तो मुझे कुछ और पेमेंट करनी है और मैंने अभी तक नहीं करी है, लेकिन मैं वो अमाउंट लिखूंगी और उस पर लिखूंगी थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है? तो आजकल अगर ईमेल से पेमेंट बिल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो भी आप एक पेपर लेकर उस पर लिख सकते हैं बिल का अमाउंट, बिल, और फिर थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस नहीं भरा है मैंने, तो अपनी सोसाइटी का जो मेंटेनेंस बिल है उस पर आप लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी, चाहे आप उसको बाद में भरें। जो अनपेड है उस पे लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी, जो भर चुके हैं उस पे लिखोगे थैंक यू पेड, ठीक है? क्लियर है? तो 10 बिल्स, मिनिमम 10 बिल्स आपको लेनी है। जैसे लॉन्ड्री वाला बिल नहीं देता है तो खुद से ही लिखना है टू द लॉन्ड्री मैन 700 रुपया, थैंक यू पेड, काम वाली बाई, तो टू शांता बाई पेड 4000 रुपीज, थैंक यू पेड, ऐसे जितने पास्ट के 10 बिल्स आपको ऐसे थैंक यू पेड करना है। जो अनपेड है उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो पैसे आपके पास आने वाले हैं और आप उसको भर देने वाले हैं, ठीक है? क्लियर? I hope it is clear. You have to take 10 bills you have received in the past and write across in front of them magic words thank you paid. You have to feel grateful that you have the money to pay the bills. Any questions you can ask about this exercise? नहीं तो हम आगे जाते हैं, इसी वाली Ma'am, I एक्सरसाइज have a करते हैं। doubt. यस, Ma'am, so बोलो you ना। said 10 bills minimum. So वो यस, per month की per week की like how अभी तो कि ये मैं मंथ का करिए, अभी तो ये मंथ का करिए ना, अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो ये मंथ का करिए। okay हम्म? ये महीने का करिए, अप्रैल के 10 बिल्स लेके, ठीक है? okay चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। तो ये हमारे हुए पास्ट के ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट के। अब आता है फ्यूचर का, जो आपको चाहिए, ठीक है? जब तक आपने पास्ट की किया, प्रेजेंट का किया, थैंक यू फॉर द मनी एंड बीइंग हैप्पी इन अदर्स प्रॉस्पेरिटी, हाउ फॉर द फ्यूचर? तो फ्यूचर के लिए मैं कुछ पढ़ूंगी, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन एंड रीड, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल आस्क मी ये कैसे है, ठीक है? तो however difficult it may be, you have to ignore your current situation and lack of money. तो आप कहोगे प्रगति, पैसे की हालत ठीक नहीं, कुछ भी होने दो, फिर भी आपको उसे इग्नोर करना है और आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंकफुल फील करना है आपको, रियली फीलिंग इज द सीक्रेट, लाइक वाह मेरे पास बहुत है। आपके वॉलेट में चाहे 85 रुपए हो, फिर भी आपको ना वाह थैंक यू, ये भी बहुत है मेरे लिए, फीलिंग आनी है कि है मेरे पास, ठीक है? एंड यू कांट बी थिंकिंग grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time, nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money। ना आपको fear करना है, ना आपको worry करना है पैसे के बारे में। Have faith that you will have money. When negative thoughts and feelings that push the money, 1 minute, when you are grateful for the money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ठीक है? So if you start practicing this, you will start
अभी ये मैं आपको चेतावनी या एडवांस में बता रही हूँ। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दोगे इस हफ्ते में, मतलब ये जो सप्ताह आगे आएगा, आपको मनी मैजिक्स दिखने लगेंगे। तो जब भी आपको कोई चीज डिस्काउंट पे मिलती है, कभी कोई फ्रेंड ने दे दिया कोई चीज कि अरे तू मत ले, मेरे पास 2 है, रुक मैं तुझे देती हूँ, ठीक है, ऐसी। तो जब भी आपके पास कोई चीज ऐसे मिलती है तो आप सोचो, डू आई हैव मोर मनी? ठीक है, जैसे आप चाय पीने गए, यहाँ से लगा रहे यार चाय पीते हैं, चलो, और कोई फ्रेंड मिल जाती है, अरे चल चल, और वो पेमेंट कर देती है, चल मैंने दिया ना, कोई बात नहीं, तो आपके पैसे बच गए। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एग्जैक्टली है, तो पैसे पे फोकस रखना है, कहाँ मेरा पैसा बच गया या मेरे पास आ गया। गूगल पे किया किसी को, 2 रुपीज कैशबैक आया, वाह, मैं तो बड़ी खुश, मुझे बड़ा मजा आता है गेम में, पेमेंट करने में मजा आता है, क्योंकि वो कैशबैक आता है और आता है कुछ वाउचर आया, बी हैप्पी। करेक्ट, यू मे नॉट यूज द वाउचर बट बी हैप्पी दैट समथिंग इज कमिंग। ओके, चलिए, तो अब आपको क्या करना है फ्यूचर के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, प्लीज लिसन नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। Today's magical practice for the money you want to receive, correct, has brought great results. मैंने खुद ये results पाए हैं। What you have to do is, you will find, I will put on the group, या जिनके पास बुक है उन्हें पता होगा, you will find a blank check, a magic check, if you can see properly. Okay, ये वाला एक check, I will put it on the group. Okay, और यहाँ आपको इससे भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैजिक चेक। तो आपको ये चेक का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये चेक है ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स से, ये नीचे साइन किया है द यूनिवर्स ने, देखिए यहाँ पर, ये सिग्नेचर कौन देने वाला, कौन है आपको, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड देगा, अगर आप ब्रह्मांड के रूल्स फॉलो करते हो तो। बैंक आपको पैसे कब देता है, जब आप बैंक के रूल्स फॉलो करते हो ना, ये यूनिवर्स आपको देगा जब आप यूनिवर्स के रूल्स फॉलो करोगे। रूल्स और लॉस तो मैंने आपको बताए ही हैं। तो आपको एक ब्लैंक चेक लेना है आपको, ठीक है, ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स से, और आपको ये चेक खुद को लिखना है। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। अब फिल इन द अमाउंट ऑफ मनी, ध्यान से सुनिए, फिल इन द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू रिसीव अलोंग विथ योर नेम, टुडेज डेट, आज की डेट डालिए, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल है आज, today's, I'm sorry, 19th April. Put 19th April 2025, put your name and amount you have to put, जो अमाउंट आपको चाहिए। ठीक है, अब ये चेक आपको बनाना है, मैजिक चेक। अब एक काम कैसे करेंगे, चूज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर वन थिंग यू रियली वांट। ऐसे नहीं, हाँ 5 करोड़, 10 करोड़, अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं। आपने जितनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है ना, उतना ही ये कैश होएगा। बहुत सालों से किया, रोज किया, शिद्दत से किया, बिना मिस किए अगर आपने असाइनमेंट्स किए हैं, तो 101% चेक पास होगा। बैलेंस है आपका, चेक कभी बाउंस होता है जब बैलेंस नहीं होता ना, 2 रुपया भी कम होता है तो रिटर्न हो जाता है चेक, यस और नो। तो आपको नहीं पता आपका ग्रैटिट्यूड कितना जमा हुआ है, तो पहले तो ग्रैटिट्यूड जमा करना है। कैसे करोगे, पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। स्विमिंग क्लास में डाला था, स्केटिंग में डाला था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो पैसों के लिए, जो जो पैसे याद आते हैं, जो मैंने छोटी सी 10 मिनट की एक्सरसाइज कराई वैसी। तो आप कमाई कर रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं, पास्ट की जितनी है वो आपने कमाई की, रोज आप 10 ब्लेसिंग लिख रहे हो, वो आपकी कमाई हो रही है, वो आपके बैंक में डिपॉजिट हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है, तो आप उतना विड्रॉ करना है। तो आपको जो चीज चाहिए ना, मेरा तो ये है कि आपको जो चीज बहुत जरूरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कोर्स करना है और उसकी फीस 30,000 है, ठीक है, एक कोर्स करना है और उसकी फीस 30,000 है, तो मैं यहाँ पर वो 30,000 लिखूंगी, ठीक है, 30,000, नो 31,000, नो 29,000, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट उतनी ही है, मैं उतना ही डालूंगी। जो चीज आपको चाहिए वो ध्यान में रखते हुए पैसे डालने। अगर आप बोलोगे मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आप करोगे क्या, वो ध्यान में रखना आपको। वाई डू यू वांट द मनी, क्योंकि मनी अपने आप में कुछ नहीं है जब तक आप उसको खर्च नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या चाहिए, तो इट कुड बी एनीथिंग, आप सोचिए आपको क्या चाहिए। अगर आप कोई ट्रिप पे जाना है, वैकेशन पे जाना है, और अगर आप ट्रेवल्स को कॉल करके पूछते हो कि पर पर्सन कितना, 4 लोगों का कितना, तो फैमिली ट्रिप का फॉर एग्जाम्पल से 1.5 लाख होता है, तो आप वो अमाउंट डाल सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं बोलूंगी वही सोच के डालो जितना, देखो अगर मेरे बैंक में 6 लाख है,
ठीक है, तो मैं 6 लाख के अंदर तक का ही चेक दूंगी, 10 लाख का चेक तो नहीं बनाऊंगी ना, मुझे पता बाउंस हो जाएगा। गेटिंग? तो जितनी आपने प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस चालू कर दें आप अपनी ग्रेटिट्यूड की, और जो चीज चाहिए उसका आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू अ कोर्स, सो आई विल मेक द चेक, अभी बना लूंगी। आपके पास नहीं होगा तो आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा आज की डेट डाल के। आई विल पुट इट फॉर, आई विल राइट माई नेम प्रगति, ऑर्डर ऑफ अमाउंट इज 30,000 ओनली, 30,000 ओनली। आई होप आप लोग ऑनलाइन के जमाने में चेक बनाना भूले नहीं होंगे। मेरे पास यहाँ पर 3 कॉपीज हैं, ये एक कॉपी है, मैंने अपना चेक बनाया है, यहाँ पर डेट डाली है प्रगति, 30,000 ओनली, द यूनिवर्स। ठीक है, तो ऐसे आपको भी चेक बनाना है। अब वंस आपने चेक के डिटेल्स डाल दिए हैं, आपको ये चेक आपके हाथ में रखना है और उस चीज के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। आई हैव टू गेट अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। तो जैसे मुझे कोर्स करना है 30,000 का, तो मैं देख रही हूँ कि मैं वो कोर्स में बैठी हूँ, करेक्ट, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं इतना सीख रही हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स इन दैट कोर्स, करेक्ट, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैंने वो कोर्स किया है, करेक्ट। मैं खुशी खुशी जा रही हूँ कोर्स में, बैठी हूँ पूरा दिन, वापस आ रही हूँ, वेरी हैप्पी। मतलब सोचते ही मुझे मजा आ रहा है कि वाह, मैं वो कोर्स करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वैसे आपको वो फीलिंग लानी है आपके हाथ में। चाहे आपको फिर शूज खरीदने हो, चाहे डायमंड इयररिंग्स खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, नया एसी खरीदना है, जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल एसी खरीदना है, तो एसी का आपने अमाउंट डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, हाथ में लिया चेक और सोचा कि आपके घर एसी है, वाह क्या मस्त लग रहा है। कहाँ लगाया आपने? हॉल में, ठीक है, 1.5 टन का है, वाह क्या चिल्ला हुआ। जैसे ही आप किचन से आते हो, हॉल में बैठे हो, वाह वाह, एकदम मजा आ जाता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, वेरी हैप्पी। ऐसे आपको पिक्चर योर सेल्फ रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ द एसी और डिलीवरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। करेक्ट, जैसे मैं देखूंगी कि मोबाइल में मुझे मैसेज आया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस कोर्स, द डिटेल्स आर दिस, वेन्यू इज दिस, रीच एट दिस टाइम। ओके, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, हाँ मुझे मैसेज आ गया, मुझे जाना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो हुआ है, उसके डिटेल्स आपको देखनी है। चेक को खाली हाथ में लेके कुछ नहीं होने वाला। चेक को लेकर हाथ में इससे क्या आपको चाहिए वो आपको क्लियरली देखना है। इससे मुझे याद आया, मैं एक प्रॉपर वर्कशॉप लेने वाली हूँ, विजुअलाइजेशन, ड्रीम राइटिंग एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हाउ टू विजुअलाइज। कितने लोगों को दिक्कत होती है विजुअलाइज करने में? यू कैन रेज योर हैंड्स। या मैं आपको बोलती हूँ विजुअलाइज करें कि जंगल है, तो क्लियर, आई मीन आई एम, so there is a technique, a practice where you can clearly visualize things. मतलब लिटरली आप वहां पहुंच के नहीं हो, यू विल हैव गूज बम्प्स। जैसे अभी मैंने छोटू सा मेडिटेशन करवाया, लाइक भारती सेट बहुत इमोशनल, शी कुड नॉट टॉक, करेक्ट, रश्मि सेट की बचपन की सारी यादें आ गई वापस, मिरोनी सेट हर चीज याद आ गई। सो उसको और क्लियरली व्हेन यू बी एबल टू सी, दैट इज द सीक्रेट। तो मैं एक प्रॉपर वर्कशॉप लेने वाली हूँ, मई में लूंगी, मैं एडवांस में बताऊंगी आपको। इट विल बी अबाउट राइटिंग योर डिजायर्स प्रॉपरली, कैसे लिखते हैं, सेकेंडली विजुअलाइजेशन, एंड थर्डली विजन बोर्ड कैसे बना। ठीक है, तो इसका एक अलग से वर्कशॉप में लूंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर ना, टुडेज प्रैक्टिस अबाउट मैजिक चेक, कैसे अमाउंट लिखना है, क्या बनाना है। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ, और इट इज क्लियर। आई विल पुट इन द ग्रुप द चेक ऑल्सो, एंड हो सकता है मैं असाइनमेंट पे डाल दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस, डेली एक्शंस तो करने ही करने हैं। उसके अलावा ये जो मैंने एक्सरसाइजेस आज हमने वीकली एक्शंस बोले हैं, पहला है मंथली बिल्स लेने हैं 10, पेड थैंक यू करना है, अनपेड को थैंक यू फॉर द मनी, पास्ट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, नोट बनाना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड, करेक्ट, टिल टुडे थ्रू आउट माई लाइफ। नेक्स्ट इज मैजिक चेक, एंड और एक बोला मैंने, रिजॉइस इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। जहां भी आपको पैसा लगा ना, किसी को भी मिला है तो बड़े खुश हो जाओ, तो क्या कर रहे हो आप, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। यूनिवर्स बोलता है ओ इसको भी चाहिए, इसको भी अच्छा लगा, वेरी गुड, इसको भी देंगे, करेक्ट। किसी ने बहुत बढ़िया साड़ी पहनी, बोली वाह ये देख क्या साड़ी है,
वाओ, बहुत मस्त है यार, यू टच इट, यू लाइक इट, यस आई लाइक इट, मस्त है, बी हैप्पी फॉर दैट, करेक्ट, नॉट दैट यूजुअली क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, हमारे कहाँ, चलो हम तो नहीं लेंगे, मैं तो नहीं ले पाऊंगी, छोड़, मुझे नहीं सूट होगी, क्या है ना, आपल्याला कुठे, अगर हम वो रील्स देखते हैं आजकल सब ऐसे ऐसे करके, इंस्टाग्राम देखते, वाह कितने की है, हाँ, ये महंगी शी, अपने अपने काम हम कहाँ लेंगे ये, छोड़ देते ना, अपने काम की नहीं है, ऐसा नहीं करना, इट बी वेरी गुड, वाह सो नाइस, ब्यूटीफुल, मस्त है, मस्त है, गिव गुड फीलिंग्स एंड लीव इट, डोंट हैव नेगेटिव थॉट कि आई कैन नॉट अफोर्ड, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, अगर आप चाहो ना तो कुछ भी ले सकते हो, अफोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल रेस्ट्रिक्टेड हियर इन द माइंड, you have to be clear what you want. Okay, okay, so I'll stop it, that's all for the workshop, I hope I have done justice today. So any questions you can ask now about money or anything general, money के workshop में आज के सेशन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। I hope I have covered everything, let me just go through it. Yes, yes, ठीक है, yeah, rules. Okay, एक भी दिन आपको ग्रेटिट्यूड का मिस नहीं करना है, लेट मी रीड दिस आउट, यू हैव टू, सो व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला, आई विल रीड वंस अगेन, अनलेस यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैव रिसीव्ड, द मैजिक वोंट वर्क एंड यू वोंट रिसीव मोर। हिंदी में, जब तक आप धन्यवाद नहीं करते हो उन चीजों के लिए जो आपको मिली हैं, तब तक मैजिक काम नहीं करेगा और आपको नई चीजें और चीजें नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल है, अगर आप किसी किराने वाले की दुकान पे जाते हो और आपका वहां पर मंथली बिल चल रहा है, यस, महीने का बिल चलता है, पहले होता था सपोज, या क्रेडिट कार्ड का बिल पकड़ लो, जब तक आप पहला बिल नहीं चुकाओगे आगे का बिल नहीं आएगा ना, आप यूज नहीं कर सकते हो कार्ड, इनसफिशिएंट फंड्स या रिजेक्टेड, डिसअप्रूव्ड, अप्रूव नहीं हो रहा है, कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है, क्यों, पहले का अमाउंट नहीं भरा आपने, बस वही है, लॉ सिंपल है दुनिया, जब तक पहले के दिए गए पैसों के लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो नए पैसे आपके पास नहीं आएंगे। आगे, यूज ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर टू हेल्प अदर पीपल dissolve problems and improve your negative situation and circumstance you may encounter throughout your life. अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा देना है। इससे ना मुझे हमारे मास्टर के, हमारे गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि जब हम ना भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कि मेरे हस्बैंड से बिस्किट्स रखते हैं कुछ और टॉफीज रखते हैं कार में, तो कभी सिग्नल पे रुके तो जो लोगों को बिस्किट या किसी को लेके जाके वड़ा पाव खिला देते हैं, हाँ भाई क्या खाना है, तेरे को पीना है, आजकल ये चाय पी ले, दैट वे। बट आवर मास्टर यूज्ड टू से, ग्रैंड मास्टर चौक से, कि अगर किसी को पैसे चाहिए ना तो उसे पैसे ही दो। अब वो पैसे का क्या करता है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट, ठीक है, क्योंकि उसे पैसे ही चाहिए था। अब उसे अगर दवाई लेनी है, आप उसे वड़ा पाव खिलाओगे तो कैसे चलेगा, समझ रहे हैं, उसे उस वक्त जो चाहिए अगर आप उसे मदद करके वो दे देंगे, दैट इज, आई मीन दैट इज व्हाट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू माई गुरु। कि आपको प्यास लगी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपको मैं पानी नहीं दूंगी, आपको मैं खिलाऊंगी, आपको खाना है, या आपको मैं इधर सुलाने के लिए बंदोबस्त किया, आप यहाँ सो जाओ, लेकिन आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए ना, तो अगर पैसे मांग रहा है ना कोई तो आपको पैसे दे दो, ठीक है, दैट इज व्हाट आवर गुरु यूज्ड टू से। सो इफ यू वांट मनी यू शुड गिव मनी, यू विल गेट मनी बैक, ओके, तो दैट इज इट, टू हेल्प पीपल टू गेट मनी। अगर किसी के पैसे अटके, अगर आपके कुछ बोलने से किसी का भला हो रहा है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, करेक्ट, टू हेल्प, हेल्प अदर्स दैट दे गेट, you will get help. To ensure that you don't reduce magic, if you miss one day, count back 3 days and repeat the practices again from there. बहुत जरूरी है, अगर आपका ये चेक जो है आप पास करवाना चाहते हो, और इसमें अगर आप आपके बैलेंस अमाउंट में चाहते हो कि बहुत सारा बैंक में बैलेंस हो, यूनिवर्स के बैंक में, तो शुक्राने भर भर के करो, जब भी फ्री बैठे हो ना, थैंक यू करो, पहले अपने पास्ट के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए,
अब वो भी हो गया तो अपने घर वालों के लिए थैंक यू, बाजू वालों के लिए थैंक यू। करेक्ट, वो लोग खुश है, समृद्ध, अरे मेरी काम वाली अच्छी है, हैप्पी है, खुश रहती है, मस्त बन ठन के आती है, वाह भाई थैंक यू गॉड, उसको खुश रख, वो खुश रहेगी, अच्छे से काम करेगी, आई एम हैप्पी फॉर हर हैप्पीनेस। हर लोगों के लिए हैप्पी, थैंकफुल फॉर अदर्स हैप्पीनेस, थैंकफुल फॉर अदर्स मनी, करेक्ट, फर्स्ट फॉर योर एंड देन फॉर अदर्स। सो एंश्योर दैट यू कीप ऑल द टाइम यू आर जस्ट बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, कलेक्टिंग मनी, बस यही है। पैसा कमाना है, मनी मैग्नेट बनना है ना, अंदर मन में लिखते जाओ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, तो मनी मिलेगा। ठीक है, यूज द प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर सो दैट ग्रैटिट्यूड सीप्स इनटू योर कॉन्शियसनेस एंड बिकम्स योर सेकंड नेचर। इतना ग्रैटिट्यूड करो कि हर बात में आप ग्रैटिट्यूड करो, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो जाए आप कंप्लेन निकले ही ना, ग्रैटिट्यूड ही निकले, आपका नेचर ही बन जाए ग्रैटिट्यूड करना। Okay, so this is all what we have learned today. Any questions you can ask? Otherwise, we can close. Okay, आज जल्दी हो गया. Good. Any questions? Any doubts? No? हेलो मैम। Yes, Dhruv. हेलो। Yes, यस, yes. Dhruv. यू टोल्ड कि अगर हम एक भी दिन मिस करते हैं तो हमें फीस हाँ, 3 दिन पीछे जान. हाँ, तो 3 दिन पीछे इसलिए जाना है क्योंकि मैं आप लोग को डेली नहीं करवा रही हूँ, हम लोग सिर्फ सैटरडेज को कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, बराबर। तो अगर आपने एक दिन का भी काउंटर ब्लेसिंग नहीं लिखा, हेलो, तो अगर आपने यस। हाँ, एक दिन का भी ब्लेसिंग नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने नहीं लिखा, मैंने कल तक लिखा है, आज मैं बहुत बिजी थी, सुबह में नहीं लिख पाई, तो अब मुझे 3 दिन पीछे, मतलब 19 है आज, तो 18 और 17, 16 से वापस ग्रेटिट्यूड लिखना है, 16, 17 और 18 कंटिन्यूस। यू शुड नॉट ब्रिंग अ ब्रेक देयर। ओके, दैट इज तो इट। सेम चीज लिखनी है या फिर नो नो अलग नो, चीज लिखनी है? अलग 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 अलग, जो आप नहीं लिखते, मतलब आपने आज नहीं लिखी ना, तो आज का तो मैं कर ही दूंगी, प्लस 2 दिन और एक्स्ट्रा लिखने हैं, सो दैट विल एंश्योर अच्छा, दैट यू विल ओके। नॉट मिस, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो 3 दिन का और लिखना है पीछे जाके, बेटर है ओके, डोंट मिस है, डोंट मिस इट। ओके, थैंक यू। that is it, yeah. Okay, thank you for asking. Okay, everybody, thank you everybody for joining. Let us close with gratitude. Thank you. Bharti, Ma'am, I any have one questions? doubt. Yes, yes, Miloni. So No, ma'am, ma'am. it's with the bill thing. So I might not have paid 10 bills because I'm not a student. So like, should I think about the 10? Matlab, I haven't even bought 10 things this month. So should I consider 2 months or something? Yes, you can listen to me. आप travel करते हो मिलोनी? Not now because the हाँ, college is no बस, more. ट्रेन, Like, I'm ट्रैवल, done. रिक्शा, wherever you go, अगर आप वहाँ उसके लिए भी हाँ, पैसे देते हो, if you have okay. paid money for your traveling, railway pass, Hmm. bus ticket, whatever, take that, on that you write thank you for the money, कि आपने पैसे Okay. खर्च किए ना, इट्स इम्पोर्टेंट। Hmm. गेटिंग मी ना, कुछ भी अगर आपने क्लिप Right. खरीदी तो थैंक यू फॉर द मनी फॉर द क्लिप, ऐसा, क्योंकि Okay. यू आर नॉट पेइंग फॉर द सर्विसेज, करेक्ट। अगर आप पार्लर में गए हो, हेयर लिया है, तो थैंक यू फॉर द मनी फॉर हेयर, तो उस महीने में Hmm. आपने वो खर्चा किया ना, उसकी, Right. ठीक है। Okay. Okay, ma'am. ठीक है, चलिए, लेट अस क्लोज। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। लेट अस क्लोज विद ग्रेटिट्यूड टू द सुप्रीम लॉर्ड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, firstly to my teacher Grandmaster Chaudhary, Mahaguruji Melu, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, Rhoda Byrne, beings of internet, beings of Zoom, all the beings of prosperity, money, energy. Thank you, thank you, thank you for being with us. Thank you. Thank you to the participants. Thank you to the families of the participants. Thank you to my family. Thank you, everybody. Good night. See you next Saturday again with another workshop. Thank you, Bye-bye. ma'am. Good night. Thank you. Good night. Yeah. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye. Bye.